फौज में तो वो मुर्गा ऐसे तोड़ रहा है और रम से चीयर्स कर रहा है और मेरा जवान मेरे लिए कितना कीमती है। अचानक मेरा दिल क्यों धड़कता है मेरे जवान के लिए। मतलब मैं उसको नाम से जानता हूँ, उसके आगे मुझे ये भी नहीं पता है कि इसके माता-पिता कहाँ रहते हैं या ये कहाँ रहता है। जब आपको दिखता है कि आपका प्रधानमंत्री जो है वो हर दिवाली आपके साथ मनाने आपके बीच आ रहा है, तो सेना के मनोबल में क्या असर पड़ता है, ये मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूँगा। ऐसा ही कोई बंदूक नहीं जिसको मैंने छुआ नहीं और ऐसा कोई बम नहीं जिसको मैंने फोड़ा नहीं। Dear Bugs, Namaskar. Welcome to Bugs channel. Today's guest has lived a life where decisions were not opinions but responsibilities. Colonel Mayank Chaubey is a former Indian Army officer who has served Bharat in uniform and continues to serve beyond it through strategic thinking, public discourse, and national awareness. Known today for Run Niti, it's a YouTube channel. His work bridges battlefield discipline with civilizational clarity, helping citizens understand strategy, geopolitics, and the idea of Rashtra beyond headlines. So, but before the ranks, before the doctrines, before the public voice, there was a journey that shaped Colonel Mayank Chaubey, and today we will explore that journey. So, first of all, I welcome Colonel Mayank Chaubey to our channel. Sir, welcome to the Bugs.com. It's honor to host you as a soldier and as a strategist who continues to serve Bharat beyond uniform. We would like to start with your early life, sir. Your childhood, your upbringing. Thank you, Himanshu ji. First of all, thanks a lot for inviting me to your channel. And I know that many esteemed guests have graced your channel. So it's an honor for me to be appearing on your podcast show. So thank you so much once again for inviting me and considering me worthy of speaking on your channel. My life, it's a very tricky question. What should I say about my life? If I look back, it has been a pretty simple life. Born into a family where my father is a retired army officer and mother, although trained as a teacher, but then she preferred to look after the household. Um, my grandfather, we used to visit him, and I used to listen to many tales from him. And what I learned that for 600 years, our clan was staying in a small township, which is part of district Nainital. And my great grandfather was basically into education field. And if in case you have heard of the name of Pandit Govind Vallabh Pant, the first chief minister of Uttar Pradesh, so he was taught by my great grandfather. So from there, the journey starts. The life has been pretty simple. Seeing my father in uniform, so but natural. A boy tries to emulate his father. So I was no exception. So I also wanted to join the forces. But then I had something else in mind. I said that I should join the forces as a doctor. Okay. And my mother wanted me to join the NDA. But then I dropped the idea of joining the NDA. I said that no, I will join the medical services. And if in case I find it fit, then I'll shift into the army later on. But then I will join the medical services. As luck would have had it, I tried for it and I could get through. The second year again I tried, and this time I went with full preparations. But then father was posted in Jodhpur, so the Rajasthan government said that you are not a domicile of Rajasthan, so you cannot appear for the examination. So I had to knock at the doors of the Jodhpur High Court, Rajasthan High Court, and they stayed that decision. I was allowed to sit in the examination. Of course, then the examination went through, and lot many things happened. And I was told in the court that I couldn't make it, which I still don't digest. That I haven't made it. I am very sure that I made it in the examination. There was a time when the RTI came into being, and I consulted my mother, and I asked her that should I file an RTI to find out as to where do I stand in this exam. So then she said, Ki beta, if in case you find that you have made it, what change can be brought? At that time, I was a commissioned officer. I was already holding the rank of a major in the army. So, army came to me, and army was my choice. But then, as you look at it, it became a second choice. Yeah. So, no regrets. I'm very happy. And if in case you ask me that, जैसे कि हम सनातन में बोलते हैं कि एक शरीर जो है उसको त्याग कर आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में जाती है। जी. तो अगर मौका मिलेगा और ईश्वर मुझसे पूछेंगे कि बेटा क्या बनना चाहते हो,
तो मैं मयंक चौबे ही बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे कोई मलाल भी नहीं है और मैं बड़ा सुखी हूँ। अगर आना पड़ा तो अंत में तो सनातन में ये है कि आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। तो यदि मोक्ष नहीं मिल पाया तो मैं मयंक चौबे ही बनना चाहूँगा, अगर ईश्वर ने मेरे सामने ये प्रश्न रख दिया। बहुत अच्छा। So I joined the OTA first, Officer Training Academy in Chennai. Stayed there for 2 months, and then I was told that I have been selected for the entry into the IMA, Indian Military Academy. So there's a procedure. You resign your state there in the OTA, and then you shift to IMA afresh. So I had 2 months of training of OTA behind my back, and I joined the Indian Military Academy in Dehradun, from where I finally passed out on 15th of December 1990 Great. and commissioned into the Army Ordnance Corps, which is a service. Now you have joined the army, you said, and you shifted to IMA Dehradun. So, I mean, army teaches lot of things. I mean, is there any lesson, two or three lessons that you know that still stays with you? Okay, let me just rewind a bit. I went for my selection board. So after you pass the written examination, you are called for an interview where you undergo some physical tests, some mental ability tests, some intelligence tests, a psychological evaluation, etc., etc. So the first SSB that I faced, I couldn't make it in that SSB. So in simple words, you can say that I failed that SSB. And when I come back, uh, my father very politely he says, "Ki beta kya hua?" I told him that I couldn't make it. So he says, "Ki you did deserve to make it because I was in shape, but the shape was oval. Okay. So I was overweight, and he said that naturally in the SSB they see that you are a army officer's son and you still don't know that you should be in shape, then you don't deserve to pass. So that was the plain reply that I got from my father. नहीं तो होता है ना पिताजी आके बेटा बड़ा बुरा हुआ तुम तो बहुत मेहनती हो बड़ा बुरा हुआ ये हुआ ना 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 बड़ा प्लेन एंड सिंपल हमारे मुंह पे बोल दिया कि बड़े प्यार से बोला गुस्से में नहीं बोला प्यार से बोला कि बेटा आपको तो होना नहीं चाहिए था and then that was the lesson that I derived that okay, if in case you're going to appear at some place, be very well prepared before you enter into that arena. And that is one lesson that stayed throughout my life. So wherever I enter, I go full throttle, and without preparation, I will not open my mouth. So I think So that was necessary for the rest of the life. That lesson prepared you for your rest of the life, and now you are always ready for everything. I mean, in army, you would have, gone to many experiences, and before army, even I mean, having a army family, there must be a different worldview. But is there anything during your journey, maybe you entered into any war, and your perspective totally changed? So what generally happens is that as a young boy before joining the forces, when I was a senior school student or entered into graduation, I often used to observe my father interacting with people in the office and on the streets as well. So what happens is that you idolize your father and you want to follow his footsteps. Now, my father, he has a tendency, he will not use any abusive language. Okay. He will never raise his voice. And he was a total teetotaler, not a single drop of wine. Throughout the army career, he went to the USA for a course for 9 months. He came back, but without touching the wine. So I had an ideal in front of me that you can survive the army career. People say कि फौज में जो जाता है दारू पीता है ये पीनी पड़ती है वो पीनी पड़ती है. So I said it's all bullshit. My father has done it, so can I. So that was one very big factor which was in my mind that okay फौज में जाऊंगा दारू नहीं पीऊंगा because my father has done it so I can also do it. I went a bit further. I said चाय भी नहीं पीता मैं. Okay. So in my life I have never tasted tea also. Coffee I started under compulsion Okay. because if you socialize you should have at least something to have. You cannot have milk, Yes. although I love milk, but then milk is not considered to be a drink to be had at social occasions. Yes. So this is one interesting thing that I wanted to share with you that how you emit. So I used to observe my father interacting with various people. Never raised his voice. Never used abusive language.
And at times I used to tell him, ki, nahi, you should have done this because, hot blood. And father used to smile and just keep quiet. And believe me, first year of my service, I was staying with my men. And then when I went back home, then I shared with him that you were right. You cannot rebuke everybody every time. And before I got commissioned, so he said that you're going to be an officer, and what are the powers vested with you? So I knew that as an officer, you can punish your subordinate, you can give him an entry in the dossier and such like things. So then he said, and he used Hindi, and he said that, बेटा क्या किसी जवान की तनख्वाह 1 रुपए से बढ़ा सकते हो? I said no. He said जवान को अगर 60 दिन की एलवी लीव ऑथराइज है, क्या उसको 61 दिन दे सकते हो? I said नहीं, and I got my answer that the powers that I was mentioning were vested in the chair. As an individual, I was totally powerless. So that thing should not enter my head that I wielded some powers just because I was wearing some badges of rank on my shoulder. So that was one big lesson for me again. So I was fortunate that I was groomed in the manner that in the house, if in case I enter the kitchen, if I have to cook something, nobody would say कि ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, लड़कियों का काम है. Abhi, before entering the podcast, I cooked a dish, and the dish is here. Okay. So I have no qualms in entering the kitchen. I can wash clothes, I can wash utensils, everything. So I am very fortunate to be brought up in such a manner that things should not enter my head. And till date, I am very proud to say that my mother can still scold me, and I would love to be scolded every time, if in case I do my mischief, and I do it very often. That's really very genuine, and really, I mean, this alcohol habit, what you have said. I mean, I have also not heard. These are very rare chances, and a family lineage, father and son both, they don't drink. Being an army officer, I mean, I think. Himanshu, you'll be surprised to know that in the army, people are there who don't take alcohol. And when you compare life in the army and outside the army, I find people outside the army are more fond of drinks. Yes. And in the army, I found that people are there who will be pure vegetarians, who will not even take eggs, who will not drink. Yes, you have such people existing in the army. And जो जनरली आर्मी की एक इमेज बनती है ना, स्टीरियोटाइप, कि फौज में तो वो मुर्गा ऐसे तोड़ रहा है और रम से चीयर्स कर रहा है, वो ऐसा ऐसा है नहीं वैसे. We are normal human beings and we speak normal. And of course, I'm proud of this service. Because, जी. जी, ये भी सर मीडिया का ही असर है, वी कैन से. जो मूवीज में दिखाया जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है, तो इमेज वही बनकर आती है कि एक स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर होगा, एंड मे बी मैनी टाइम्स ही वुड बी हैविंग अ पाइप स्मोकिंग. सिगार भी नहीं, वो पाइप पीते हैं आर्मी ऑफिसर्स, स्पेशली जो कर्नल मेजर रैंक के हो जाते हैं, और ड्रिंक्स उनके. ये इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी नहीं है. So this is how we have seen in Bollywood movies mostly. तो ये एक इमेज बन जाती है. बट यू आर ट्रू, वी हैव सीन मैनी सच केसेस जहाँ बहुत वेजिटेरियन आर्मी ऑफिसर्स हैं, एंड उनमें शक्ति की या उनके अंदर करेज की कोई कमी नहीं है. सर, एक डिसीजन मेकिंग के बारे में एक जानना है कि हाउ डज एन आर्मी ऑफिसर लर्न डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, pressure and moral responsibility? How does it happen? Because we know that in army, command of the senior is uppermost. Then where decision making works and how it comes out? Uh, Himanshu ji, I give this credit to our training. Our training academies are such that our seniors, they groom us. Um, the drill ustad, we call them, the men who teach us how to march, they ensure discipline. We have physical training instructors who shape us physically, and then the officers are there to guide us and who take our classes, etc. So it's a very good, well-oiled machinery. So what we believe is that when you join the academy, first of all, they break your ego and then they make your ego.
and you are you automatically you forget what your things were there in your mind. All the cobwebs are cleared, and once you come out, you find that everything in you has changed. And when it comes to decision making, it's so very clear that okay, I would like to remind you today only on Twitter I had posted the Chetwood Credo. The safety and honor of the country comes first and foremost in every time. The men you command, their safety and welfare comes next. Your own safety and security comes last. So that is the credo which is there in the Chetwood Hall of the IMA. So everybody goes and we take a oath there after we pass out. So in due course of the training, that Chetwood Credo just goes and seeps into your blood and it becomes part of your DNA. There was a very beautiful example. It was the first year of my service, and maybe around 15 days or 20 days into commission service. And I was leading a patrol on the Indo Tibetan border. So, and those days we didn't have very sophisticated gear with us. So, the sleeping bag that we carried was filled with cotton. And cotton, you know, becomes heavy if in case you're using it in a sleeping bag. So, you used to have a sleeping bag, a mattress, a extra pair of uniform change, and various other items, your kit items, your shaving, your toiletries, your undergarments, your towel, etc. So I had weighed around 30 kgs. So 30 kgs weight we were carrying on our back with our personal weapon and etc. And we were walking on in a terrain which is known as high altitude. So although army people who are listening to this would understand what I mean, it is 9,000 feet and above. Oh, So the atmosphere is rarefied, oxygen becomes scarce, and breathing is slightly tough. So while the patrol was on a move, I had 18 Jawans with me in that patrol. And there was a boulder which had come on the road, on the path. It wasn't a road, it was a track on which we were walking, and it had obstructed the path. And to the left was the hill, and on to the right was a sheer drop of around 200 meters. And there was a river which was flowing. You could listen to the river flow, and you know how a river in the mountains flow. They are very, very rapid. So I could hear the river flow, but I couldn't see the river flow. Now, we were supposed to negotiate that obstacle. So the patrol halted, and I don't know from where that intuition comes into my mind. I said, Halt, I will cross it first. So I negotiate, I'm clinging to the rock and I'm crossing the boulder. And when I reach on the other side, now I tell my men to come over. Believe me, Himanshu ji, if in case I was not wearing that shirt, my heart would have pumped out of my chest. Because at that point of time, I would have remembered all the 33 कोटि जवान कि मेरे जवान को कुछ नहीं होना चाहिए. So I didn't know. This was all natural. This was in hindsight. When I come back, I'm relaxing. Then I recollect as to what was going on in my mind because that was natural, which was happening. And when the last Jawan crossed the obstacle, took a sigh of relief, and then we moved ahead. Now, I don't know when I look back कि ये सोच कहाँ से आई कि पहले मुझे क्रॉस करना चाहिए और मेरा जवान मेरे लिए कितना कीमती है अचानक मेरा दिल क्यों धड़कता है मेरे जवान के लिए मतलब मैं उसको नाम से जानता हूँ उसके आगे मुझे ये भी नहीं पता है कि इसके माता पिता कहाँ रहते हैं या ये कहाँ रहता है पर मुझे नाम से पता है कि ये जवान मेरा है और आपकी ऐसी बॉन्डिंग होती है कि आपको लगता है कि भगवान मुझे कुछ हो जाए मेरे जवान को कुछ ना हो तो फिर देन यू रियलाइज कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग यू हैव अंडरगॉन and that has shaped you up into that human being where we can proudly say that the Indian Army officer says, "Follow me." So we can proudly say that the officer to man kill ratio in Indian Army is the highest in the world. सो अगर आप मानेंगे कि अगर 10 जवान मरते हैं तो एक ऑफिसर की मृत्यु होती है इंडियन आर्मी के तो बाकी सेनाओं में बहुत सारे जवान मरते हैं तब एक ऑफिसर की डेथ होती है वाई बिकॉज इन द आर्मी वी से फॉलो मी वी डोंट से कि गो एंड कैप्चर दैट ऑब्स्टिकल और दैट टारगेट हैज टू बी न्यूट्रलाइज गो देयर नो द ऑफिसर लीड्स इट नाउ
और बहुत सारे किस्से सुनाने के लिए। दिस वाज जस्ट वन शॉर्ट एग्जांपल। एंड उसके बाद में हाउ बॉन्डिंग हैपेंस इनटू द आर्म फोर्सेस। मेरे जवानों को पता है कि लेफ्टिनेंट साहब चाय नहीं पीते। आई वाज अ सेकंड लेफ्टिनेंट एट दैट टाइम। ओके। सो पेट्रोल हॉल्ट करती है कहीं पर, सो हॉल्ट करके वी हैव अ टी ब्रेक। हम्म। स्टोव निकालते हैं, जलाएंगे, उस पर पानी रखेंगे, उबालेंगे, चाय बनाएंगे, एवरीबडी हैज अ कप ऑफ टी, दैट्स अ रिफ्रेश ब्रेक एंड यू रेस्ट देयर। एंड दे नो कि लेफ्टिनेंट साहब चाय पीते नहीं है। एंड सडनली यू विल फाइंड वन जवान एक स्टील का ग्लास लेकर आएगा, गुनगुना पानी है उसके अंदर। ये क्या है साहब? नींबू पानी। मैं तो नींबू लेकर आया था मेरे लिए। हाँ साहब। मतलब दैट गाय नोस कि हम पेट्रोल में जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट साहब रुकेंगे, हॉल्ट करेंगे, पेट्रोल चाय बनेगी, ये चाय पीते नहीं है, तो ही विल कैरी नींबू फॉर मी। नाउ दैट इज द अफेक्शन दैट ऑफिसर एंजॉयज विद हिज मेन व्हेन ही इज देयर विद हिम। तो ये चीज जो है ना, बाहर लोगों को पता भी नहीं कि हमारी बॉन होमी और हमारे जवानों के बीच में हमारे रिश्ते होते क्या हैं। सही। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ऑफिसर जो है वो ऑर्डर दे रहा है कि फायर करो, ये करो, वो करो। बट देन इट्स टोटली ट्रू। डिफरेंट। जी। मेरा सर एक्चुअली नेक्स्ट सवाल ही यही था कि राष्ट्र सर्वोपरि का क्या मतलब है, व्हाट डज इट हाँ ट्रूली मीन्स। तो आपने बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा तो अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट अगेन फॉर आवर पब्लिक, व्हेन एन आर्मी ऑफिसर सेज राष्ट्र सर्वोपरि, आपके मैंने ट्विटर हैंडल देखा था, उसमें भी आपने स्पेशली लिखा है, तो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट फॉर एन आर्मी ऑफिसर व्हाट डज राष्ट्र सर्वोपरि मीन्स। So let me share a few anecdotes. First year of my service and मेरी पलटन में we had a मंदिर, a मस्जिद and a गुरुद्वारा. सो फौज में भी ना हर चीज ऑथराइजेशन के ऊपर होती है। सो इफ यू हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मेन इन द यूनिट, यू आर ऑथराइज दैट रिलीजियस प्लेस। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी करी तो मैं चर्च खोल के बैठ जाऊं, मेरी मर्जी करी मैं सिनेगॉग खोलूं ना। इट इज ऑन ऑथराइजेशन। अगर आपकी यूनिट में इतने पीपल हैं हिंदू फेथ के तो आप मंदिर ऑथराइज है, इतने सिख हैं तो आपको गुरुद्वारा ऑथराइज है, इतने मुस्लिम हैं तो आपको मस्जिद ऑथराइज है, इतने क्रिश्चियन हैं तो आपको चर्च ऑथराइज है। सो मेरी यूनिट के कंपोजिशन के हिसाब से वी वर ऑथराइज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। हम प्यार से उसको बोलते थे MMG। नाउ MMG इज मीडियम मशीन गन, बट देन हमारी यूनिट में हम लोग MMG बोलते थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तो हर संडे को तीनों धर्म स्थल में अपनी अपनी पूजा अर्चना होती थी। सो वी यूज्ड टू कॉल इट द MMG परेड। ओके। और हम उस यूनिट में 5 सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे। तो हमारी बाई रोटेशन ड्यूटी लगती थी। सेकंड लेफ्टिनेंट मयंक चौबे मंदिर, सेकंड लेफ्टिनेंट XYZ मस्जिद, सेकंड लेफ्टिनेंट ABC इन गुरुद्वारा। एंड बाई रोटेशन हम सबकी ड्यूटी लगती थी। नाउ हमारी जो कंपनीज थी, राइफल कंपनीज इन द यूनिट, उनकी बाई रोटेशन ड्यूटी बनती थी कि अल्फा कंपनी बनाएगी मंदिर के लिए, ब्रावो कंपनी मस्जिद के लिए, और चार्ली कंपनी गुरुद्वारे के लिए प्रसाद बनाएगी। नाउ अल्फा कंपनी वाज हिंदू कंपनी, ब्रावो कंपनी वाज द मुस्लिम कंपनी। तो इस प्रकार से अलग अलग कंपनी के क्लास कंपोजिशन अलग अलग थे। और मैं जिस कंपनी में कंपनी टू आई थी दैट वाज अ प्योरली मुस्लिम कंपनी। तो हमारी होड़ ये लगती थी कि हमारी कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रसाद शुड बी द टेस्टीएस्ट। ओके। ओके, इट इज नॉट कि अगर मैं मंदिर के लिए बना रहा हूं तो वो टेस्टी बनेगा ना। मेरी कंपनी का नाम ऊंचा होना चाहिए, तो मेरी कंपनी का बनाया हुआ प्रसाद सबसे टेस्टी होगा। और आपको पता है टेस्टी बनाने का तरीका क्या है? खूब दबा के उसमें घी डालो, खूब दबा के चीनी डालो। मानिए, प्रसाद जब हाथ में आता था ना तो हाथ से तेल रिस रहा होता था नीचे, क्योंकि टेस्ट के चक्कर में लोग उसमें इतना कुछ झोंकते थे। ठीक लगा। बट प्यार है वो। सो नाउ यू सी, although we are maintaining three different religious institutions in that unit, but the rivalry is not between the religions but between the companies। कि मेरी कंपनी बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा, सब कुछ है। जब पलटन मार्च करेगी तो मंदिर से पुजारी आएंगे, मस्जिद से मौलवी आएंगे, गुरुद्वारे से ग्रंथी आएंगे, तीनों अपने धर्मगुरु अपना अपना पाठ करेंगे सामने खड़े होकर। गाड़ियों के आगे नींबू रखा जाएगा जो कि बलि का प्रतीक है। और यूनिट मार्च करेगी किस उद्घोष पे? भारत माता की जय। भारत माता की जय होते ही इग्निशन ऑन, गाड़ियां आगे मूव करेंगी, नींबू जो है वो फूटेंगे गाड़ी के चलने से। ये एक प्रथा है, आपको पता है कि हम किस प्रकार से, ये किस चीज का द्योतक होता है। तो मुझे देख के बड़ी हंसी आई थी। मुझे ध्यान आता है कि राजनाथ सिंह जी रफेल लेकर आए थे, जी। तो रफेल के आगे वो नींबू और वो रखे गए थे। और लोगों ने ये बोलना शुरू किया था कि ये तो हवाई जहाज है और ये है।
और उन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम था कि भारतीय सेना में ये प्रथा है। हम शस्त्र पूजा नियम से करते हैं। भाई शस्त्र जो है वो सब कुछ है हमारे लिए। जी। दशहरे का पर्व चाहे वो यूनिट कोई भी क्लास कंपोजिशन की हो, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शस्त्र पूजा होती है, वाहनों की पूजा होती है, गाड़ियाँ धुलाई होती है, उन पे फूल मालाएँ चढ़ती हैं, पंडित जी आएँगे, पूजा करेंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी विधि-विधान से होती हैं। तो ऐसा नहीं है। और अगर ईद का दिन है, तो सीओ साहब जो होंगे, चाहे वो बेशक कर्नल रामकिशन हैं, पर कर्नल रामकिशन टोपी पहन के मस्जिद जाएँगे और बाद में जो शाही टुकड़ा मिलेगा उनको बड़े शौक से उसको ग्रहण करके आएँगे। और अगर कर्नल खान सीओ हैं, हम्म। तो जन्माष्टमी की रात को 12 बजे कर्नल और मिसेस खान लड्डू गोपाल जैसे अवतरित होंगे, झूला झुलाएँगे बैठ के वो। वहाँ कोई नहीं चलता कि भाई मैं हूँ ये इस प्रथा को मानता हूँ, वो ना। एक बार आप यूनिट के अंदर घुस गए, आपके जवान का धर्म आपका धर्म है, सीधी-सी बात है। तो आप बेशक कुछ भी हों अपनी तरफ से। जी। जी। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ से मेरे को दो बातें याद आती हैं। एक तो सैम मानेकशॉ याद आते हैं कि उनके बारे में ये बातें बहुत सुनाई देती हैं कि उन्होंने नेपाली तक सीखी क्योंकि उनकी गोरखा रेजिमेंट थी। और ये वो बहुत क्लियरली बोलते थे कि मेरी पलटन का जो धर्म है वो मेरा धर्म है। हाँ। जो आपने कहा वही हमने मतलब हमने तो मूवीज में सुना है, बट मतलब हमने ये सैम मानेकशॉ से सुना था और आपसे अब सुन रहे हैं। दूसरा जो मुझे ध्यान आता है कि सर, whenever we you know we are on the way and we see any convoy, wherever from it is coming, I mean, we have also traveled and seen many roads in the country. वो जम्मू से आ रही है, राजस्थान से आ रही है मिलिट्री की कॉन्वॉय, गाड़ी एकदम चमकती हुई होती है, साफ सुथरी, एकदम क्लीन। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि वो कीचड़ में, धूल में पसरी हुई, एकदम उसमें मिक्स्ड होके, और मतलब उसमें कहीं जरा से भी गंदगी नहीं दिखाई देती है। ये आपने जब बोला तब एकदम से पॉइंट क्लिक किया कि ऐसा, हाँ, ये तो हमने हमेशा देखा है, कभी गंदी नहीं देखी कोई भी मिलिट्री की गाड़ी। आपके इस आर्मी बैकग्राउंड पे तो हम घंटों तक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे मूव करने से पहले दो सवाल और सर। एक तो ये है कि आपके वॉर एक्सपीरियंसेस, इफ यू कैन से, कि क्या क्या कुछ मेजर रहे हो, एनी वॉर्स और एनी कन्फ्रंटेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई जॉइन्ड द आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर इज़ अ सर्विस। हम्म। सो हमारी कोर का मोटो है शस्त्र से शक्ति। एंड हम प्राउडली कहते हैं कि हम फौज को सुई से लेकर टैंक तक सब चीज़ मुहैया कराते हैं। जी। अच्छा, उस कोर में भी उस समय हमारे टाइम पे विभाजन होता था। तो एक जो था वो टेक्निकल स्टोर्स देखता था एक टाइप, और एक पार्ट जो है वो देखता था आर्मामेंट एंड एमनिशन। तो आई कम फ्रॉम अ ब्रीड वेयर आई प्राउडली कॉल माई सेल्फ एज अ सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ आर्मामेंट एंड एमनिशन। ओके। So that was my choice, and they selected me for this job, and I'm very proud to say that ऐसा ही कोई बंदूक नहीं जिसको मैंने छुआ नहीं, और ऐसा कोई बम नहीं जिसको मैंने फोड़ा नहीं। क्या बात। तो फौज आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस देती है। लोग जिसके लिए तरसते हैं, आपको वो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। जी। हर आदमी सैलानी बनकर देश का भ्रमण करना चाहता है। हमको फौज वो पूरे मौके देती है कि हमें हर जगह घूम के देखने का देश को मौका मिलता है। तो आप यकीन मानिए कोई भी फौजी जो है किसी माहौल में उसका बच्चा आराम से ढल सकता है। जी, बिल्कुल। तो आपने नेपाली का नाम लिया, तो जैसे मेरी पोस्टिंग अगर मेरी हुई गोरखा हिल्स में, कालिम्पोंग में, तो मैंने टूटी-फूटी नेपाली सीखनी शुरू कर दी। ओके। ठीक है? पंजाब में रहे तो टूटी-फूटी पंजाबी सीखनी शुरू कर दी। आपके जवान जो भाषा बोलते हैं, आप वो पिकअप करते हैं। आपका मतलब कि यू you can start a conversation with any language of the country. That is the beauty of the armed forces. तो जैसे सैम मानेकशॉ जो थे, अब जैसे कोई ऑफिसर गोरखा रेजिमेंट में कमीशन होता है, तो गोरखाली उसको आनी ही आनी है। ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे कोर्समेट हैं, आज मेजर जनरल बने हुए हैं, लेकिन एड्रेस करेंगे तो मुझे बोलेंगे दाई कसोचा। तो मतलब अब वो है पंजाबी, प्योर पंजाबी है बंदा, लेकिन वो नॉर्मल एड्रेसिंग में भी उसकी नेपाली निकलती है। सो वंस यू जॉइन द आर्मी, आपके जवान की भाषा और आपके जवान का धर्म आपका धर्म बन जाता है। क्या
सर, अंतिम प्रश्न मेरा है, जो जब हम लोग भारतीय सनातन परंपरा को पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें सब बहुत प्रोमिनेंटली एक शब्द आता है, धर्म युद्ध। और ये भारतीयों की परंपरा रही है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हम धर्म युद्ध के चक्कर में बहुत सारे युद्ध हारे हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हारे हैं। तो धर्म युद्ध का आज के समय में भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में कितना इन्वॉल्वमेंट है, या मतलब धर्म युद्ध का कितना पालन होता है, और और इसका दुनिया की बाकी की आर्मी से कंपैरिजन जो आपने एक्सपीरियंस की हो, उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? अ, जो मेरा अपना देखा हुआ है मैं वो बताऊंगा। जो मेरे फादर ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूँगा। जी। और चलिए मैं पहले फादर के एक्सपीरियंसेस से आता हूँ। जब मेरे फादर एक कैप्टन रैंक में थे उस समय, तो 71 का युद्ध हुआ था। और आपको पता है कि 93,000 पाकिस्तान के युद्धबंदी हमारे कब्जे में थे। तो जो उनका सीनियर लॉट था, जिसमें जनरल ए के नियाजी शामिल थे, उस सीनियर लॉट को पकड़ कर रखा गया था जबलपुर नामक स्थान में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके। तो जबलपुर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप एस्टेब्लिश किया गया था, और उसको आज विजंता ब्लॉक बोलते हैं। तो 2 ब्लॉक्स का वो था, और उसके अंदर पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके रखा गया था। फादर जो थे मेरे, उस यूनिट के फूड मेंबर थे, यानी कि मेस का संचालन होता है, उसमें खाना किस प्रकार से बनता है उसकी देखरेख की जिम्मेवारी इनकी थी। ही वॉज अ इंस्ट्रक्टर इन दैट इंस्टीट्यूशन, बट साथ में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी। नाउ धर्म युद्ध की बात आती है, युद्धबंदी हैं वो, युद्धबंदी हैं लेकिन रैंक होल्ड करते हैं। सो ही वॉज जनरल ए के नियाजी, एंड फादर वॉज अ कैप्टन। अब कैप्टन जो है वो जनरल से जूनियर होता है। So father used to meet General Niazi on a regular basis to inquire as to how was the quality of food being given to the prisoner of war. ये उनके संस्मरण को मैंने ट्वीट भी किया है उनकी अपनी भाषा में। उन्होंने एक बार मेरे फादर से पूछा, चौबे जो हमको तुम मीट देते हो वो झटका है कि हलाल है? तो फादर ने उनसे बोला कि सर हम आपके धर्म की, आपकी आस्था की इज्जत करते हैं, आपको हम हलाल मीट देते हैं। धर्म युद्ध की बात चल रही है ये। जी। फादर मेरे प्योर वेजिटेरियन हैं, ओके। but he is ensuring that the prisoner of war who is a Muslim, although he is a prisoner, but still he is representing his army. तो चाहे दुश्मन है, हम दुश्मन को भी इज्जत देते हैं क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। वो बात यही समाप्त नहीं होती है। जनरल नियाजी बोलते हैं कि हमारी पाकीज़ा फिल्म देखने की इच्छा है। ओके। ठीक है। तो जिस कोर से फादर संबंध रखते हैं, हमारे पास में मोबाइल सिनेमा सेक्शन नाम का एक डिटैचमेंट होता था। ओके। तो यूनिट्स के एंटरटेनमेंट के लिए एक गाड़ी के अंदर एक प्रोजेक्टर होता था और कई फिल्म्स के स्पूल्स होते थे। तो वो गाड़ी ट्रैवल करती थी, यूनिट और यूनिट जाके फिल्म्स स्क्रीन करती थी फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ जवान। अब वो चीज़ खत्म हो गई क्योंकि हर जगह पर सिनेमा थिएटर्स बन गए। और उस समय चलता था और मैंने भी ये सिस्टम देखा हुआ है। उनके लिए स्पेशली पाकीज़ा फिल्म स्क्रीन की गई जो उन्होंने देखी। सो मेरे फादर उसी एपिसोड में कहते हैं कि बेटा हम लोग जो थे वो हम जेनीवा कन्वेंशंस के तहत युद्ध बंदियों की पूरी इज्जत करते थे, उनको एज ऑफिसर्स ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में क्या व्यवहार किया वो हम सबको मालूम है। जी। आपने धर्म युद्ध का प्रश्न पूछा था, ये बात आपके 2 प्रश्नों का उत्तर एक झटके में देती है जी। कि भारतीय सेना कहाँ टिकती है और वो कहाँ टिकते हैं। मैं और आपको एग्जाम्पल दूंगा इसका। कारगिल का युद्ध होता है, काफी लोगों को मालूम होगा, सन 99 की। पाकिस्तान के रेगुलर्स लड़ रहे थे, सबको मालूम है ये। पाकिस्तान का एक ऑफिसर था कैप्टन करनैल शेर खान। कैप्टन करनैल शेर खान पाकिस्तान के पंजाब से संबंध था। कल्चर हमारे दोनों के सेम है पंजाब में। बेटे की फौज में जाने की इच्छा थी, तो इसलिए घर में उसको करनैल शेर खान बोलते थे। ओके। ठीक है। तो बनता है, वो कैप्टन बनता है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का ऑफिसर, और इंडियन आर्मी के असॉल्ट को फेस कर रहा है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको हम मार देते हैं, पर वो बड़ी ब्रेवरी से लड़ता है। तो हमारे इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर बाजवा है, वो साइटेशन लिखते हैं
कि ये आदमी जो है बहुत बहादुरी से लड़ा है और इसको इसका रिकग्निशन मिलना चाहिए, और वो पर्ची लिख के उसकी जेब में डाल देते हैं। और इंडियन आर्मी के उस समय सिपाही जोगिंदर सिंह का वो साइटेशन लिखते हैं। जोगिंदर सिंह को परमवीर चक्र मिलता है उस साइटेशन के ऊपर। पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी या इस ऑफिसर की किस्मत अच्छी थी, पाकिस्तान इसकी डेड बॉडी को कबूल कर लेता है। ओके। उसकी डेड बॉडी शिफ्ट होती है पाकिस्तान। हम्म। और पाकिस्तान में जब उसकी जेब में वो पर्ची देखते हैं, एक ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी के हाथ की लिखी हुई, तो इसको पाकिस्तान की हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर से नवाजा जाता है। मेरे ख्याल से निशाने पाक या निशाने हैदर है, क्या नाम निशाने है, हैदर। सितारा जी, वो मिलता है, जो भी उसका हाईएस्ट सिविल मिलिट्री ऑनर है। तो ये दुनिया का एक अकेली मिसाल है जिसमें कि एक ऑफिसर ने दो लोगों के साइटेशन लिखे हैं और दोनों अपोजिंग कंट्रीज के हैं और दोनों को हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर मिला है। क्या? इसको अगेन मैंने ट्वीट किया था। तो ये आपको मिसाल इंडियन आर्मी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। नंबर दो, आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्लेम का, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि वो उनके सोल्जर्स हैं। हम्म। हम डेड को भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हमारे जवानों ने, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में इलाका था, मौलवी उस पहाड़ी को चढ़ नहीं सकते थे आराम से। इंडियन आर्मी के जवानों ने मौलवी को पीठ पे बैठा के ऊपर चढ़ाया है, वहां पर उनकी नमाज जनाजा अदा करवाई है, उनको सुपुर्द खाक किया है और उनको फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ में वहां पर दफन किया गया। ये इंडियन आर्मी है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तंगधार में जो कोई जाता है देख सकता है बॉर्डर के ऊपर एक पाकिस्तानी मेजर की कब्र बनी हुई है ओके। और उसको एक सिख यूनिट के साथ में युद्ध के समय उस मेजर को मारा गया था। तो चूंकि वो यहाँ मरा था, उसकी बॉडी को यहाँ दफन किया गया। उस कब्र को बाई रोटेशन यूनिट इंडियन आर्मी की मेंटेन करती है, पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर है। पाकिस्तान वहां से एलओसी के पार गोले दागता है, गोला गिरने से वो कब्र टूटती है और इंडियन आर्मी उसको मेंटेन करती है। मैंने काफी टीवी डिबेट्स में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को ये बोला है, अगर आपके पास में एक ऐसा एग्जाम्पल है तो आप बता के दिखाइए, मैं आपको हजारों गिनवाऊंगा। तो हिमांशु जी, धर्म युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो मैं इस पे एक अलग से पूरा पॉडकास्ट का सेशन कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। भारतीय हमारे, आर्मी की तो सर मतलब क्या कहें कि शायद पूरी हिस्ट्री भरी हुई होगी धर्म युद्ध से। मैं यही कारण मानता हूं कि जो जिस तरीके से भारत का जो जवान युद्ध में लड़ता है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको पता है कि वो राइट है और वो जानता है। देखिए, जब तक आप इज्जत करना नहीं जानेंगे, आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी। पर भारतीय सेना जानती है, चाहे तुम दुश्मन हो फिर भी हम तुमको इज्जत देना जानते हैं। तो हम मॉरल आर्मी हैं, हम कोई टुच्ची 2 रुपए की आर्मी नहीं है। वी आर अ वेरी ट्रेन्ड एंड अ डिसिप्लिन्ड फोर्स। वी आर अ सिविलाइजेशनल नेशन। यस। तो मतलब आप इंडियन आर्मी को किसी आर्मी से कंपेयर नहीं कर सकते, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सर इसका कुछ भी झलक किसी और आर्मी में आपको कभी दिखाई दी है? जो भारतीय आर्मी की जो संप्रभुता है, जो धर्म युद्ध की जो हमारी परंपरा है, इसका कहीं झलक दुनिया की किसी आर्मी में आपको कहीं दिखता है, कुछ परसेंट में भी? देखिए, मैंने अदर आर्मीज को, जैसे सिंगापुर आर्मी हुई, इनको देखा है, लेकिन जिस आर्मी में एक इंडियननेस का पुट है, हम्म। जैसे सिंगापुर की आर्मी में बहुत भारत। नेटिव इंडियंस जो है वहां पर गए, सेटल हुए हैं, उनकी सोच थोड़ी वैसी हो सकती है। साउथ ईस्ट एशियन आर्मी में थोड़ा बहुत आपको झलक मिल सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो बर्बरता जो है वो, उसकी कमी कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि वी आर द बेस्ट, एंड आई कैन समराइज इट यहाँ पर। चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, जिस कंपटीशन में हमारे आर्म फोर्सेस ने पार्ट लिया है, वी हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट। फर्स्ट के नीचे की हमको गिनती आती ही नहीं है। जी। तो इसी वजह से। आई कैन जी। आई कैन प्राउडली से दैट। एंड इसी वजह से आई थिंक जो भारतीय जनता है उसके लिए आर्मी के लिए दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, डर नहीं है। आर्मी को देख के, एक बार लोकल पुलिस वाले को देख के हो सकता है आदमी या नागरिक डर जाए, लेकिन कोई वर्दी वाला एक बार जब खड़ा हो जाता है तो भारतीय नागरिक को कभी डरते हुए नहीं देखा सर। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक बार को सैल्यूट कर देगा, वो मुस्कुरा देगा, लेकिन किसी की आंख में डर नहीं देखा कभी भी। ये मैं एक आधी लाइफ फादर के साथ नॉन सिविलियन मतलब सीआरपीएफ में बिताई है, बाकी एज ए सिविलियन बिताई है।
तो दोनों ही साइड में मैं ये देख के कह सकता हूँ कि आर्मी ऑफ भारतीय आर्मी के साथ एटलीस्ट इतना तो है कि ये रिस्पेक्ट जनता दिखाती है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी एंड ऑल द सोल्जर्स। तो अब सर हम बैटल ग्राउंड से बाहर आते हैं और आपके रिटायरमेंट की बात करते हैं। फॉर मैनी ऑफिसर्स रिटायरमेंट इज एन एंड, they want to enjoy, they want to live peaceful life, but we have seen you in a different transformation. You started a channel Run Niti, then again आप बहुत मेहनत के साथ इसमें काम कर रहे हैं, and I can understand running a podcast कि it's not an easy task, बहुत कुछ लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज रन नीति एंड व्हाट वाज द कोर थॉट बिहाइंड दिस नेम। इससे पहले थोड़ा सा एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना दे दूं कि लास्ट के 5 साल जो सर्विस के थे मैं विदेश मंत्रालय के साथ में था, ओके। और विदेश मंत्रालय की जो ट्रेनिंग आर्म है मैं उसमें था। सो आई वाज कोऑर्डिनेटिंग द कोर्सेज फॉर इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लेटर फॉर द डिप्लोमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आई कैन प्राउडली से दैट दुनिया के हर कोने में मेरा एक दोस्त मौजूद है, एक डिप्लोमेट दोस्त। यू नेम अ कंट्री, आई गॉट अ फ्रेंड सिटिंग देयर, एंड आई कैन प्राउडली से दैट ही इज अ फ्रेंड बिकॉज वहाँ पर जब मैंने काम किया लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। सो मतलब मैंने ऐसा फील किया कि यस आई बिलोंग टू दिस कंट्री एंड पीपल आर लुकिंग अप टू आर कंट्री। मतलब लोग जो हैं वो हमारी सच में इज्जत करते हैं, और ये चीज़ मैंने उनसे इंटरेक्शन के बाद में की। जो लोग काफ़ी डिबेट करते हैं, सुनी सुनाई बात पे करते हैं कि वो वैसा है वैसा है, मैंने प्रत्येक देश के नागरिक को देखा है, उनकी सोच देखी है, वो हमारे देश से क्या अपेक्षा रखते हैं वो देखा है, वो किस तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं वो भी देखा है मैंने। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई बहस अगर करनी है तो ऐसे आदमी से बहस करो जो जानता ना हो। मैंने उस चीज़ को जिया है, उनको देखा है, और मैं अपने मेमोइर्स को, एक किताब शीघ्र ही ईश्वर कृपा से निकलने वाली है, जो उसमें मैं अपने इस एक्सपीरियंस का वर्णन भी कर रहा हूँ। तो रणनीति के पीछे रण हो गया युद्ध का पार्ट जो कि सेना का आ गया, और नीति आ गई डिप्लोमेसी का पार्ट। तो मैं डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी दोनों को लेकर चलते हुए इसका नाम जो था वो रणनीति रखा था। तो ये थॉट था उसके पीछे। सो व्हाई, आई मीन अगेन दिस क्वेश्चन कि रणनीति क्यों, आई मीन आपको कुछ ऐसा लगा कि इंडियन पब्लिक डिस्कोर्स में, डिफेंस में, जियो पॉलिटिक्स में कोई आपको गैप दिखाई दिया कि आई नीड टू फिल दिस गैप, या आपको कुछ ऐसा लगा कि देर इज स्टिल समथिंग विच इज अनअर्थ जो अभी तक बताया नहीं गया है, या ऐसा कुछ डिस्कोर्स है जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आया है? तो वो क्या चीज थी जो आपको लगा कि विच शुड बी द कोर ऑफ योर चैनल रणनीति? देखिए, अगर हिमांशु जी आप चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चैनल अप्रैल के महीने से शुरू है। हम्म। तो मैंने अप्रैल के महीने में उसको चैनल को स्टार्ट किया था, पर काम उस पर बिल्कुल भी नहीं किया। ओके। लोगो डिजाइन वगैरह ये सब कर करा के रखा हुआ था, बट देन आई डिडंट गेट इनटू इट कि उसको चैनल को शुरू करना चाहिए। रणनीति नाम रख के उसको वहां रख के सजा के बैठा हुआ था शांतिपूर्वक। और फिर मेरे पास में फीडबैक आता है कि नहीं, यूथ जो है वो आपको सुनना चाहती है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि इसको आपने चलाना है। अब मेरे पास चैनल को चलाने का कोई अनुभव नहीं था। मुझे स्ट्रीम यार्ड सीखा सिखाया था, जहाँ पॉडकास्ट करता था तो लोग स्ट्रीम यार्ड से मुझे जोड़ते थे, तो मुझे इतना पता था स्ट्रीम यार्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इसको चला सकते हो। तो मैंने उसको लेके शुरू किया। टीवी डिबेट्स में पार्ट लेता था, तो टीवी के जो जितने भी क्लिप्स होते थे उसको लेके चढ़ा देता था इसके ऊपर। तो रेडीमेड मेरे पास मटेरियल था। ओके। और फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया कि अपने विचार जो थे वो 8-9 मिनट के छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के उसको अपलोड करने का। फिर भी लोगों को लगा कि नहीं, अभी भी पूरा नहीं मिल रहा है, तो देन यू स्टार्ट इनवाइटिंग गेस्ट्स जो कि आपके सोचे हुए तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को रख सकते हैं। तो फिर वो गेस्ट को इनवाइट करना शुरू किया। अब मेरा प्रोग्राम ऐसा रहता है कि मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है इसको डिवोट करने का। हालांकि प्रेशर बहुत रहता है, लोग आइडिया देते हैं कि इसको गेस्ट को बुलाइए, इसको बुलाइए, लेकिन अगर मैं हिमांशु जी के साथ बैठा हूं तो मैं अपने चैनल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता। दैट इज अ फैक्ट। अभी आपके बाद में 9 बजे एक पॉडकास्ट में मुझे अपियर होना है,
ओके। क्योंकि उनसे वादा किया हुआ है कि भाई मैं आपके चैनल पे आऊँगा। सो अपने चैनल पे डिवोट करने का टाइम नहीं मिलता, तो मेरी सारी एनर्जीज़ जो हैं वो इधर पे डिस्ट्रीब्यूट होकर रह जाती हैं। बट द इंटेंशन वाज़ कि जो मेरी सोच है उसको लेकर मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। और मेरा मानना ये है कि मैं चीज़ को थोड़ा-सा ऑब्लिक देखना पसंद करता हूँ। आप एक व्यू को लेके चलते हैं, मैं थोड़ा-सा तिरछा लेके चलता हूँ उसको, और फिर धीरे-धीरे उसको मैंने अपनी राइटिंग में भी लाना शुरू किया उस चीज़ को। तो अगर पॉडकास्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा टाइम जो है अधिकतर बीतता है रिसर्च वर्क किया। जैसे डिबेट में जो आपसे बात की मैंने, हुँ, क्योंकि उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, आप रिसर्च वर्क करते ही हैं आप। हुँ, तो आप रिसर्च वर्क करते हैं, माइट एज़ वेल उसको एक तरीके से पिरो के आप उसका एक आर्टिकल बना दें। और वो आर्टिकल बना के फिर लोग हैं समझदार जो कि पसंद करते हैं कि छापना, तो उसको वो प्रिंट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। सो गोवा क्रॉनिकल में, मिल्ली क्रॉनिकल में, फर्स्ट पोस्ट में वो आर्टिकल्स जो है वो रेगुलरली मैं कंट्रीब्यूट करते रहता हूँ, तो वहाँ पर वो छपते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी राइटिंग को भी इसमें लगाया कि आपकी जो बात है वो कई तरीकों से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर मैं लेक्चर्स भी देता हूँ, ओके। जिससे बच्चों से संपर्क बना रहता है। आर्मी हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन शेयर की है मेरे साथ में। वो मैं जाके बच्चों को दिखाता हूँ। एम क्या है कि बच्चों को पता लगे आखिर हम किस देश में रह रहे हैं, हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस कितनी कैपेबल है, आत्मनिर्भर भारत आखिर है क्या, हमारी सलाहियत क्या है, और किस तरीके से उनका मनोबल जो है वो ऊंचा रखा जा सके। सो कुछ एक ऐसे एम्स लेके मैं चल रहा हूँ, तो इस वजह से तो वो ये आपका जो गोल है ना, वो आपको खुद ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इट्स अ साइक्लिक फिनोमेना। तो आपको एनर्जी वहां से मिलती है क्योंकि आपका गोल है, और आप एनर्जी से जाते हैं तो आपको गोल अचीव करते हैं, तो इट्स अ गुड, इसको फिजिक्स की भाषा में जो लोग कहते हैं कार्नोट साइकिल, इट्स अ वेरी एफिशिएंट साइकिल, आई मस्ट से दैट। जी जी। कार्नोट, यस। मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग एंट्रोपी, कार्नोट सबसे पहले आते हैं। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को या शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा हु इज कार्नोट। तो जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट आई वुड से कि आप एंट्रोपी पढ़िए, आपको कार्नोट के बारे में पता चल जाएगा कि हु इज सादी कार्नोट। तो सर एक मतलब आपका जो चैनल है वो रणनीति है, और इसमें और आपके जो डिस्कोर्सेज हैं वो भी जियो पॉलिटिक्स पर हैं, मोस्टली इंडियन स्ट्रेटेजी पे हैं। एक प्रश्न आई थिंक हमें दिखाई देता है, वो ये है कि इंडियन आर्मी 2014 से पहले और 2014 के बाद, और इंडियन आर्मी प्लस इंडियन पॉलिटिक्स ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये कई जगह आता है कि देयर आर डिफरेंसेस। तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या एक्चुअल में आर देयर डिफरेंसेस। इंडियन आर्मी की जो का जो मनोबल है वो 2014 से पहले और 2014 के बाद में क्या फर्क आया है कुछ, और भारतीय इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजी में ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कोई अंतर आया है? फौज में ना, फौज एक बड़ी ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म, और यकीन मानिए हमारी ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसा इनग्रेन्ड है कि फौज में आपको कोई अफसर ऐसा दिखाई देगा नहीं जो चाहेगा कि भाई मिलिट्री रूल लग जाए, जैसे पाकिस्तान में है ना, बांग्लादेश में है। हर अफसर इस ख्वाहिश में रहता है कि हम मिलिट्री रुक जाए तो ऐसा हो जाए ना। इंडियन आर्मी का हर अफसर चाहता है कि हम जितना इससे दूर रहें उतना अच्छा है, ये पॉलिटिकल रहें। तो फौज के लिए एक रक्षा राज्य मंत्री का भी आना बहुत बड़ी चीज होती है। तो रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री। हम्म, जब आपको दिखता है कि आपका प्रधानमंत्री जो है वो हर दिवाली आपके साथ मनाने आपके बीच आ रहा है, तो सेना के मनोबल में क्या असर पड़ता है, ये मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, रक्षा राज्य मंत्री भी फौज के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जी। प्रधानमंत्री तो मतलब पिता, पिता से आगे दादा, उस कैटेगरी तक पहुंच गए। तो जब आपको पता है कि ऐसा व्यक्ति आपके साथ में दिवाली तक, सबसे बड़ा त्योहार दिवाली हुआ, जी। तो दिवाली अगर आपके साथ मना रहा है, अभी लास्ट में उन्होंने मनाए थे युद्ध पोत के ऊपर, हम्म, है ना? तो जब आपको पता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आपके साथ दिवाली मनाने आ रहा है, वो लेवल ऑफ मोराल जो है उसको आप मतलब आप गेज नहीं कर सकते। तो वहां पर एक अंतर दिखाई देता है।
मैं आज ही पढ़ रहा था सन 62 के बारे में। हम्म, और सन 62 में जनरल भगत और एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने एक स्टडी की थी कि 62 में आखिर ऐसा क्यों हुआ। ओके। और उस स्टडी की रिपोर्ट जो है वो शाया नहीं की गई, वो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आई। और उसको पढ़ के जो मुझे मिला था तो मुझे उत्सुकता हुई कि मैं इसको पूरा रिपोर्ट को पूरा डिटेल में पढूं। तो उसकी समरी में ये था कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए सेना की एक प्रकार से बलि चढ़ाई गई, क्योंकि सेना के पास में ना तो साजो सामान था पूरा, ना कपड़े लत्ते थे। और कपड़े लत्ते की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे एक सज्जन से स्वयं बात की है जिन्होंने 62 का युद्ध लड़ा है। 62 का युद्ध लड़ने के समय वो युद्ध बंदी बनाए गए, युद्ध बंदी बनकर वो चीन में रहे और 6 महीने बाद वो वापस लौटकर भारत आए। वो लौटकर उस समय भारत आए जब उनका तर्पण हो चुका था, घर में लोग मान चुके थे कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तिलांजलि दे दी गई थी और ये मान लिया गया था कि अब हमारा बेटा वापस नहीं आएगा। तो अचानक वो वापस लौट के आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मैंने, और वो मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं, तो मैंने उनसे बड़े खुल के बात की थी कि आप मुझे बताइए कि आप उस समय कपड़े क्या पहनते थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा कोट हमारा ऐसा था, ट्राउजर ऐसे थे, जूते आपको ध्यान के हैरानगी होगी कि हमारी फौज जो थी बर्फ में लड़ रही थी और जूते के नाम पे हमारे पास में जंगल शू होते थे। हम्म, आपने अगर जंगल शू देखा होगा कि कैनवस का ऊपर का टॉप है और नीचे रबर का सोल है। तो अगर आप वो पहना के आदमी को बोलेंगे सब जीरो टेम्परेचर में तू जाके लड़ ले, तो उसके बेचारे के पैर ही जम जाएंगे, वो तो हिल नहीं सकता। उसमें भी रेजांगला के युद्ध में आपको पता है कि 3,000 चीनी सैनिकों को किस प्रकार से 125 लोगों ने रोका था, 13 कुआं की वो थी। जी। तो फौज जो लड़ी है वो अपने दारोमदार पे लड़ी थी। पॉलिटिकल सपोर्ट के बारे में मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहूंगा, परंतु बहुत कुछ है जिसके बारे में कहा जाना चाहिए और लोग सिर्फ शांत बैठे शराफत में। तो वो रिपोर्ट जब शाया होगी, कभी होगी, तो उसके बारे में फिर मैं आपसे खुल के बात करूंगा। जी। बहरहाल इतना कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में काफी कुछ कहा गया है। जनरल थिमैया के क्या स्टेटमेंट थे, फौज ने कैसे मना किया था, लेकिन पॉलिटिशियंस हमारे आमादा थे दिखाने के लिए कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत अच्छे हैं, आला दर्जे के हैं, और उन्होंने फौज को बलि वेदी पर चढ़ाया था। जी। 2014 के बाद में, और ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की थी, जी। तो मैंने 2014 में, मैं आपसे इसलिए कह सकता हूँ कि मैं 2014 में विदेश मंत्रालय में आ गया था। ओके। तो मैं 2014 में विदेश मंत्रालय के अपने डिफरेंसेस को चेक कर रहा था कि क्या हो रहे हैं, हम्म, क्योंकि उस समय मैं डेपुटेशन पे था यहाँ पर। तो जैसे आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ इसी मंत्रालय का। ऑफिसर ट्रेनीज जो थे आईएफएस के, वो जाते हैं कॉल के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास। तो जैसे सरकार का नियम है कि 2 क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, आंसर लिखे होते हैं। वो क्वेश्चंस जो है ये ट्रेनी ऑफिसर्स पूछेंगे और उत्तर जो है प्रधानमंत्री ये देंगे जो लिखा हुआ है, सेट पैटर्न है। तो ये फाइल जाती है प्रधानमंत्री के ऑफिस में। 15 दिन हुए होते हैं इन प्रधानमंत्री को अपना कार्यभार संभाले हुए। तो मैं इनको ट्रेनिंग्स को लेके जाता हूँ, 7 RCR बोलते थे, वहाँ गेट पर गया, इनको हैंड ओवर किया सिक्योरिटी को कि भाई अब मेरा प्रोटोकॉल यहाँ से मैं वापस, और ये अंदर जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मैं वापस आ जाता हूँ। तो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब वापस आते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं कि कर्नल साहब आप ऑफिस आ सकते हैं। मैं बिल्कुल सर। मैं आया, ऑफिस आया तो बड़े चिंतामग्न बैठे हुए थे। तो मुझसे कहते हैं कि कर्नल साहब एवरीथिंग इज चेंज्ड। मैंने पूछा क्या हुआ सर? कहते हैं जो हमने वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए थे वो तो परे रख दिए गए, और फिर जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे वो ऐसे क्वेश्चंस थे। तो मैं समझ गया कि द चेंज हैज बिगन। अच्छा, इस चेंज का असर क्या होता है? हम्म, मैंने आपसे जिक्र किया था कि फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए। जी। आप यकीन मानिए हिमांशु जी, मेरे पास में अनगिनत फॉरेन डिप्लोमेट्स ने मुझसे ये बोला है, मिस्टर चौबे कैन यू प्लीज लेंड योर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर टू अस। अब ये चीज जो है वो कोई यकीन नहीं करेगा, बट दीज वर दी वर्ड्स, कैन यू प्लीज लेंड योर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ ईयर टू अस। मतलब आज जो है लोग इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं। मैं तो देश का नाम लेके बोल सकता हूँ, उनके डिप्लोमेट्स को लेकर गया, वो लोग मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो जूझ गए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के पास में कि वी वांट टू इनकॉर्पोरेट दिस टेक्निक इनटू आवर कंट्री, टेल अस हाउ डू वी गेट इट देयर।
तो जो लोग इस इंस्टीट्यूशन पे उँगली उठाते हैं, उन्होंने ये चीज़ का पता ही नहीं है एग्जैक्टली। कि जो विदेशी हैं, वो आतुर हैं आपकी चीज़ सीखने के लिए। जो वीवीपैट पे जैसे ही प्रिंट निकला, उनके होश उड़ गए कि भई ऐसी टेक्निक भी है क्या? कि आप जिसको वोट डाल रहे हैं, आपको प्रूफ आपको सामने मिल रहा है वेरिफाइबल। एंड दे वर फ्लोर्ड लूकिंग एट द सिस्टम। जब उनको ये बताते हैं कि इंडिया का टोटल इलेक्टोरेट जो है, वो अफ्रीका और यूरोप की कंबाइंड पॉपुलेशन के बराबर है। यस। मतलब इट इज़ माइंड बॉगलिंग। दे जस्ट कांट फैथम एंड दे से कि आपकी सरकार बदलती है और बिना किसी विरोध के बदल जाती है। हाउ कैन दिस हैपन? ओके। So they say कि sir your country is chaos but it is organized chaos, क्योंकि उन्होंने ऐसी आबादी कहीं देखी नहीं है। भाई इक्का दुक्के लोग उनको दिखते हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ी तादाद में दिखते हैं और बहुत बड़ी तादाद में भी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। सो एक बार जो विदेशी भारत की धरती पर कदम रखता है, भारत का मुरीद बन जाता है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ट्रू। और इस सरकार ने क्या किया है, मैंने खुद कई ऐसे प्रोग्राम्स को रन करते देखा है जिसमें भारत की छवि को चार चांद लगे हैं। और उनका ये कि मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर का विजिट था श्रीलंका में, श्रीलंका गया था, उसको मैं कवर कर रहा था। तो मतलब मेरे पास फेरिस्त है सुनाने की आपको कि 2014 के बाद में क्या कुछ बदला है। प्रेस का एंटूराज ज़्यादा था, उसको काट दिया गया, नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर केवलकेड है, इसको कट करो, इसको कट करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब फ्रिल्स जो थे उनको अलग, मीट पे डिस्कशन होगा, बात होगी मुद्दे की। बहुत है किस्से सुना है कि हिमांशु जी कभी एक अलग जी पॉडकास्ट रखें। जी बिल्कुल सर। मुझे आपकी बातों से ही लग रहा है कि शायद इतना कुछ होगा कि समय निकल जाएगा और हम सुनते ही रह जाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, हम इसको अब क्लोजर की तरफ लेके आते हैं। दो छोटे से सवाल सर आपसे। एक तो ये कि कोई ऐसी किताब जो जियो पॉलिटिक्स पे हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आचार्य चाणक्य जो थे, जी। आप उनको पढ़ लीजिए और आप सब कुछ पार पा जाएंगे। हम जो है ना दुनिया भर के मैकियावेली पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, समय की शुद्ध बर्बादी है। जी। हमारे पास में अपने घर में खजाना रखा है, उसी को देख लीजिए, आप पार पा जाएंगे। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। जी। कौटिल्याज अर्थशास्त्र। हाँ। और अमेज़न पे बड़े आराम से मिलता है। जी, जी, तो उसको पढ़ लीजिए, आप पार पा जाएँगे। उससे बढ़ के आप सुन त्ज़ू गॉड्स ऑफ वॉर, दुनिया नाम लेती है अंग्रेजी के। ना जी ना। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में लिख दिया बहुत है, सफिशिएंट है वो। जी। आप आगे और एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है तो सुन त्ज़ू का जो है आर्ट ऑफ वॉर, अगेन इट्स अ वेरी गुड रीड। बट आपके पास में पूरा मसाला यहाँ रखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। मेरा जो दूसरा सवाल था शायद वो सबसे पहले ही हो गया। एक क्विक क्वेश्चन था, वन मिसकंसेप्शन सिविलियंस हैव अबाउट द आर्मी, स्पेशली इंडियन आर्मी। देखिए, हमारी फिलॉसफी है कि वी शुड बी वर्किंग हार्ड एंड वी शुड प्ले हार्ड। तो वर्क हार्ड जो है किसी को दिखता नहीं है, वो दिखता कब है? जब आप युद्ध क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त करते हैं, तब आपको पता लगता है कि यस, दे वर रियली वर्किंग हार्ड। ऐसा नहीं है कि फौज जो सीधा लड़ाई के मैदान में कूद पड़ती है, गोली फायर करके जीत के आ जाती है ना। आप जब भी रहते हैं, आप लगातार ट्रेन करते रहते हैं। और ट्रेनिंग जो होती है फाइनली कल्मिनेट करती है आपके ऑपरेशंस में, तो युद्ध क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। तो दैट इज वर्किंग हार्ड। और प्लेइंग हार्ड क्या होता है? जो आपको पिक्चर में दिखाते हैं ना, पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं है फौज में पार्टी नहीं होती। पार्टी होती है, रिलीजियसली पार्टी होती है, बड़ा खाना भी होता है जिसपे जवानों के साथ में फौजी डांस करते हैं। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज आ गए हैं ऐसे। सो द आर्मी बिलीव्स इन वर्किंग हार्ड एंड प्लेइंग हार्ड। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि शायद हमने समय कम ले लिया था या फिर हमें मल्टीपल एपिसोड्स करने चाहिए। बहुत कुछ है जो आपसे बात की जा सकती है। बट बिफोर क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट आई वुड रिक्वेस्ट टू गिव मैसेज टू आवर यूथ, द यंग भारतीयज। देखिए, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो कि आप इस ज्योग्राफी में पैदा हुए हैं। आपको ये नहीं पता है कि आपको अनायास ही क्या मिल गया है। जी। क्योंकि अगर आप बॉर्डर के इस पार देखें, उस पार देखें, सब तरफ हाहाकार है। आप जो है एट पीस है। मैं तो पॉडकास्ट में कहता हूँ इस समय आप पॉपकॉर्न का डब्बा खोल के बैठे दुनिया को एंजॉय कीजिए इस समय, क्योंकि यू आर इन सेफ हैंड्स इन ऑल वेज।
पॉलिटिकली भी, मिलिटरीली भी, जिस तरीके से यू आर द सेफेस्ट पर्सन। और आप जिस भारत भूमि में हैं, मैं कहता हूँ कि इसमें आप क्या कुछ दे दीजिए इस पे वापस लौटने के लिए, क्योंकि ये ऐसी भूमि है, ये न जाने कितने पुण्य का फल है जो कि आप इस धरा पर पैदा हुए हैं। जी, बिल्कुल। मैंने बहुत दुनिया के बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग मुझसे गले मिलके रो रो के जाते थे यहाँ से। और यकीन मानिए कि मतलब मुझे एज अ भारतीय आई यूज्ड टू फील प्राउड दैट आई बिलोंग टू दिस सॉइल। तो अपने आप का धन्यवाद मानिए, और आपके पास जो क्षमता है, जिस क्षेत्र में लगे हैं, आप जी जान से काम कीजिए, और देखिए फिर भारत माता आपको किस तरीके से सहेज कर रखती है और आपका समाज सुधार करती है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके मैसेज के लिए, आपके टाइम के लिए, आपने जो अपना पूरा जीवन इस देश की सर्विस के लिए दिया है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से बात करें किसी और नई चर्चा पे। तब तक के लिए हम अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारा समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।